Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. So, in our today's session, my dear student, we are going to start a new chapter. The name of this chapter is Reproduction in Animals. Okay, means in this chapter, we are going to see how animals reproduce. Okay, but before starting this chapter, my dear student, I want to ask you one thing. Okay, see, match the animals with their mode of reproduction. Okay, here in front of you, you can see there are so many pictures. Now what you have to do, my dear student, you have to match the animal to their mode of reproduction. Okay, like ये क्या है, काऊ है. काऊ किस टाइप का रिप्रोडक्शन करती है? काऊ एक काफ को पैदा करती है, यही करती है ना. ठीक है. हाँ, अच्छा अब ये देखो, ये ऑस्ट्रिच है, ये ऑस्ट्रिच एग इसको, ठीक है, फेच करती है. ये फ्रॉग है, फ्रॉग क्या करते हैं, ये फ्रॉग के बच्चे हैं. ठीक है. और ये बर्ड है, बर्ड देखो ये एग्स देती हैं. ठीक है. तो इसी तरीके से आपको ये चीज याद रखना है कि कौन सी चीज किस तरीके से अपने ऑफस्प्रिंग को आगे बढ़ाती है. हम इस चैप्टर में यही देखने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स आज. ठीक है, कि एनिमल्स में किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है. ठीक है. सो कम विद मी एंड स्टार्ट द चैप्टर. Now, my dear student, what is the meaning of reproduction? I'm talking about reproduction, but what is the meaning of reproduction? Actually, reproduction is a biological process. Okay, reproduction is a biological process, or it's a natural process through which the population of any community increases. Okay, अब देखो reproduction क्या है? Reproduction एक fundamental feature है सारे living creatures के लिए. See, reproduction can be only done by living creature. It can't be done by non-living creatures. Okay, so due to reproduction, all individual organisms exist. Okay, now my dear student, in this chapter we are going to see how animals reproduce. See, animals actually, reproduction of animal is divided into two categories. Okay, the animals can reproduce through two steps, like viviparous and oviparous. Okay, so the animal reproduction is divided into two parts, viviparous and oviparous. Okay, animals reproduction of animals can be divided into two parts. Okay, viviparous and oviparous. Now what is the meaning of viviparous? Viviparous means the animals who can give birth to their live offsprings, means the category of animal who can birth their babies. Okay, so those category are called as viviparous. Okay, while on the another hand, the animals who can lay eggs, okay, the animals or birds who give birth through their eggs is called as oviparous. Okay, see my dear student, animal reproduce by two ways. Okay, first is viviparous. Viviparous means when they birth their babies naturally. Okay, and the second category is oviparous. Oviparous means when they hatch eggs. Okay, now here there is a table is given you to show the difference between oviparous and viviparous. Okay, so come with me and let's see. Here is a group of animals, okay, like mammals, birds, reptiles, amphibians, and fish. Now we are going to see who are viviparous and who are oviparous. Okay, see, oviparous means egg layer. You can see here oviparous means egg layers and viviparous means live bearers. Okay, so in case of mammals, अच्छा mammal का मतलब क्या होता है? ठीक है, mammal का क्या मतलब होता है? Here you can see only a few primitive egg-laying mammals exist. Example: spiny anteater and duck-billed platypus. ठीक है, मैमल्स का मतलब होता है जो ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं अपने बच्चों को. ठीक है, तो वो कैटेगरीज मैमल्स की आती है. तो मैमल्स में ओविपैरस मतलब मैमल्स में जो अंडे के थ्रू अपने बच्चे पैदा करते हैं वो सिर्फ दो ही हैं, मतलब बहुत कम है. वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं आपके? स्पाइनी एंटीटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस. ठीक है. Now, in mammals, the mammals who belongs to viviparous category, nearly all mammals. Okay, like examples here you can see mouse, human, cat, dog, bear, kangaroo, and dolphin. They all are viviparous in mammals category. Okay. Now in birds,
in bird category who belongs to oviparous. Almost all birds belongs to oviparous because they lay eggs, like robin, penguin, parrot, sparrow, and eagle. And the bird who belongs to viviparous category, no one. Okay. Now in case of reptiles, okay, now the case of reptiles came. The reptiles who come under the category of oviparous, these are almost all reptiles are egg laying, like crocodile, turtle, and cobra. Okay, all the reptiles lay egg. Okay, and the reptiles who belongs to viviparous category are some snakes, like viper snake. Okay, viper snake is a life bearer. Okay, he gave birth to his baby. Now the amphibians, I hope my dear students you all know what is the meaning of amphibian. The animal who can live on both land and water. Okay, they are called as amphibians. Now amphibians who belongs to oviparous category, almost all amphibians, like frog or toad. Okay, now the amphibians who belongs to viviparous category, only few species. Okay, only a few species of frog which we can find in South America and West Africa. Okay, now the last, fish. Okay, the fish who belongs to oviparous category, most species of the fish belongs to oviparous category, like herring fish, salmon fish, trout. Okay, but some category of fish belongs to viviparous category, like shark and guppies or blue whale. Okay, they gave birth to their babies. Okay, so this is the difference between oviparous and viviparous, and all the group of animals or mammals belongs to this two categories. Now come with me and proceed further. See, first of all we are going to see about reproduction in birds. Okay, अच्छा, बर्ड का क्या मतलब होता है? आप जानते हो बर्ड जब अंडे देते हैं, ठीक है, बर्ड्स सारे के सारे बर्ड्स अंडे के थ्रू ही रिप्रोडक्शन अपना करते हैं, ठीक है। तो जब बर्ड्स अपने अंडे देते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि जो एग होता है बर्ड्स का, उसमें यॉक होता है, ठीक है। अच्छा, ये यॉक का क्या मतलब है? येलो कलर का पोर्शन होता है, ठीक है। तो जब बर्ड्स अंडे देते हैं, उस अंडे में यॉक प्रेजेंट होता है, एक सेल होता है जिसको हम यॉक कहते हैं, ठीक है। और ये यॉक क्या है? यॉक इज द सप्लाई ऑफ फूड फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रायो, ठीक है। उस अंडे के अंदर जो एक न्यू लाइफ बन रही है, ठीक है, उसको खाना कहाँ से मिलता है? उसको खाना इस यॉक के थ्रू मिलता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, मुर्गी अंडा ही देती है, सबको अंडा खाना पसंद है, ठीक है। मुर्गी जो अंडे देती है, मुर्गी कौन है? फीमेल हैन है, ठीक है, मतलब फीमेल बर्ड है। तो जो मुर्गी अंडे देती है ना, उसके जो अंडे होते हैं वो एल्बुबम लेयर्स के बने होते हैं। मतलब जो मुर्गी के अंडे के जो लेयर्स होते हैं ना, उन लेयर्स को हम एल्बुबम कहते हैं, ठीक है। दो मेम्ब्रेन और एक हार्ड शेल होता है। तो मुर्गी के अंडे को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मुर्गी के अंडे में दो मेम्ब्रेन होते हैं और एक ऊपर से जो व्हाइट कलर का हार्ड शेल होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो लेयर होती है, वो उस लेयर को हम एल्बुबम कहते हैं, ठीक है। तो जो शेल और मेम्ब्रेन है वो अंडे को प्रोटेक्ट करती है। जो व्हाइट कलर का शेल होता है ना ऊपर, और जो मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं अंडे के ऊपर, वो सारे के सारे मिलके अंडे को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। The albumum feeds the developing embryo with water and protein. Now, what is the work of this albumum? आप देख सकते हो here, it is a structure of a egg. Okay, so this white colored is known as your hard shell. This white color is very hard in nature. Okay, अब देखो, ये जो एल्बुबम होता है ना, वो उस एम्ब्रायो को खाना और पानी देता है, ठीक है। The hen bird may lay for 1 to 19 eggs in her nest. अच्छा, एक जो मुर्गी होती है ना, वो अपने नेस्ट में 1 से लेकर 19 अंडे तक एक साथ दे सकती है, ठीक है। मीन्स अ hen can lay 1 to 19 eggs. ओके, अच्छा, अब ये देखिए जो hen होता है। अच्छा, आप देखो ये, ठीक है। नाउ आई होप माय डियर स्टूडेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एग इज क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। जब कोई भी चिड़िया अंडे देते हैं, हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे मुर्गी के अंडे का, ठीक है। तो मुर्गी के अंडे को आप देखते हो ना, व्हाइट कलर का होता है, वो एक बहुत ही हार्ड शेल होता है जो कि अंदर के एम्ब्रायो को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अंदर एल्बुबम होता है। एल्बुबम का काम होता है, सॉरी, कि
उस डेवलपिंग एम्ब्रायो को वो क्या दे, खाना और पानी दे, ठीक है। तो उसके बाद और ये भी होता है कि एक जो मुर्गी होती है वो एक टाइम पे 1 से लेके 19 अंडे तक दे सकती है। नाउ इन द केस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, इन द केस ऑफ बर्ड्स अ बर्ड कैन ले ओनली 1 egg पर डे, ठीक है, बर्ड्स कैन ले ओनली 1 egg पर डे, ओके। और जो ये जो चिड़िया होता है ना, चिड़िया सुबह ही अपने अंडे दे देते हैं, क्योंकि वो अपना पूरा दिन वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, इसीलिए वो मॉर्निंग का टाइम ही चूज करते हैं फॉर लेइंग देयर एग्स, ओके। नाउ सी टेकिंग केयर ऑफ द एग्स, अच्छा आपने अंडे तो दे दिए, ठीक है, मतलब मुर्गियों ने अंडे दे दिए, चिड़ियों ने अंडे दे दिए, नाउ दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर लेड एग्स। नाउ इन व्हाट वे दे आर गोइंग टू टेक केयर ऑफ दोज एग्स, सी for taking care of their eggs, birds usually build nest, okay, birds usually build nest and they hatch there, okay, means they lay their egg on those nest, and after birthing their eggs, birds take great care of their eggs, okay। See in most cases the body heat of the parent bird, ठीक है, अच्छा देखो जब चिड़िया अंडे दे देते हैं ना तो उस अंडे को गर्म रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो अंडा गर्म नहीं रहेगा ना तो जो एम्ब्रायो उसमें पल रहा है वो मर जाएगा। तो अंडे को गर्मी कहाँ से मिलेगी, बॉडी से तो बाहर निकल गई वो, तो उसको गर्मी कहाँ से मिलेगी, उसको गर्मी मिलती है जो बर्ड्स उसके ऊपर आपने देखा होगा ना बैठी रहती हैं अपने अंडे के ऊपर, ओके। hens are also used to sit upon their eggs, okay, why they are sitting, because they want to give their body heat to their eggs, okay, to protect the developing embryo within the egg, okay। Now see this is all about, now here you also see incubation process, what is the incubation process, अभी incubation process क्या होता है, देखो keeping the egg warm is called incubation process, okay। Few moments ago I already discussed you that hen or birds usually set upon their laid eggs, and why they lay upon their laid eggs, because they want to give their body heat to protect the embryo developing within the eggs. So that process means to keeping their egg warm, that process is called incubation process, okay। Now we are going to see how reproduction in the case of insects take place, okay। See majority of the insects hatch their, means hatch from eggs, okay, majority of the insects hatch from eggs। Now what are the meaning of insects, insects are very small creature, they also considered as an animal, and all the insects have 6 legs, maximum insects have 6 legs। Now the first reproduction we are going to see in the cockroach, we are going to see how cockroach life cycle goes। See there are the 3 stages, okay, there are the 3 stages in the whole life cycle of the cockroach। Here you can see the first stage is egg, the second one is nymph, and the third one is adult। Here you can see this is the life process or the life cycle of cockroach, okay। So cockroach first of all developed in the form of eggs, okay, and they converted in nymph, okay, from egg they converted into nymph, it takes 6 to 7 weeks, okay, it takes 6 to 7 weeks, and from nymph it takes 9 to 13 months to develop into a fully grown cockroach, okay। So here you can see this is the life cycle of a cockroach। Now here we are going to discuss, see yeah, the cockroach eggs, okay, the egg of the cockroaches can be 6 to 40 eggs, means a single cockroach can lay 6 to 40 eggs at a time, okay। अब देखो जो कॉकरोच की जो लाइफ साइकिल होती है ना वो बड़ी बड़ी ही इंटरेस्टिंग होती है। वो क्या करते हैं, वो अंडे से निकलते हैं तो बड़े छोटे साइज में होते हैं, सी अब देख रहे हो ये ब्लैक कलर में होते हैं, बड़े अभी जस्ट वो अंडे से निकले होते हैं, ठीक है। जब ये अंडे से निकलते हैं उस वक्त हम इनको एग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 6 से 7 हफ्ते के बाद निम्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। हियर यू कैन सी निम्फ, ओके, दिस इज योर निम्फ, ये निम्फ में कन्वर्ट होते हैं। तो जब ये निम्फ में कन्वर्ट होते हैं तो बहुत सारे स्टेजेस से ये होके गुजरते हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ना, निम्फ से एक फुल्ली ग्रोन कॉकरोच में कन्वर्ट होने में उन्हें
9 से 13 महीने लगते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब बहुत सारे चेंजेस इस टाइम कॉकरोच के बॉडी में होते हैं। जैसे कौन कौन से कॉकरोच की बॉडी में होते हैं? पहले तो कॉकरोच रेड कलर के तो होते ही नहीं है उस टाइम, उस दे ऑल आर इन सॉफ्ट एंड व्हाइट इन कलर। ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू एक यंग कॉकरोच में कन्वर्ट होते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज योर मोल्टिंग प्रोसेस। तो ये कई बार होता है, निम्फ से एक एडल्ट कॉकरोच बनने में कई सारे मोल्टिंग प्रोसेस से इनको होके गुजरना होता है। इस प्रोसेस में इनके बॉडी का कलर चेंज होता है, विंग्स इनकी चेंज होती हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों से एक लाइफ साइकिल कॉकरोच का बनता है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, वी आर गोइंग टू सी द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई में किस तरीके की लाइफ साइकिल होती है? ओके, सी द लाइफ ऑफ बटरफ्लाई इज ऑल्सो गॉन विथ also complete in 4 stages. Okay, what are those 4 stages? Egg, first of all butterfly lay egg, then those egg converted into caterpillar. Okay, and those caterpillar converted into pupa, and those pupa finally converted into full grown butterfly. Okay, the first stage of cockroach, okay, sorry, the first stage in the life cycle of butterfly is tiny eggs. Okay, means tiny eggs are laid by the female butterfly. Okay, and after 5 days later, okay, and after 5 days a tiny worm like creature came from that egg, and that tiny creature is called as caterpillar. Okay, the second stage is caterpillar. Okay, larva. Caterpillar is also called as larva. Okay, and the caterpillar is the growing stage of any butterfly. Okay, in stage 3, but caterpillars are converted into pupa. Okay, converted into pupa. And what is the meaning of pupa? Pupa means it is a transformation stage. Okay, the third stage is the transformation stage. A butterfly is converted from caterpillar to full grown butterfly in this stage. Okay, now here you can see this is the 4th stage, adult butterfly stage. Okay, so here you can see, my dear student, first of all a female butterfly lay eggs. Okay, these eggs are converted in caterpillar after 5 days. Okay, and this caterpillar is converted into pupa or chrysalis. It means it is a transforming stage from caterpillar to a full grown butterfly. Okay, so here you can see these are the 4 stages in the life cycle of a butterfly. Okay, now after life cycle of butterfly, we are going to see the life cycle of a housefly. Okay, we are going to see about the life cycle of a housefly. Let's see. Housefly life cycle is also divided into 4 parts. Okay, first is your egg, then larva, then pupa, then adult. Same like butterfly. Okay, so in egg stage a female butterfly can give up to 500 eggs. Okay, it can give 500 eggs. Okay, in several batches, means at one batch a female housefly can lay 75 to 150 eggs. See, the first stage of life cycle of a housefly is egg. Okay, so a female housefly at a time can give 75 to 150 eggs, and in whole combined a female housefly then throughout his life cycle can produce 500 eggs. Okay, now see, after egg the larva stage came. Okay, the larva stage is a mature stage, means here a mature larva came from egg, and the height of that larva is 3 to 9 centimeter long. Okay, see, after larva again came the stage of pupa. Okay, the pupa stage means a housefly is converting into adult housefly. Okay, and its color change from yellow, red, brown, black. Okay, and its hair color transformation also took place. Sometime it became yellow, then red, then brown, or sometime it black. Okay, see, now after some time an flying housefly emerged from pupa. Okay, so this stage is called as pupa. In pupa we can see one new term. This is
Telenium. What is the meaning of telenium, my dear students? Here you can see. See, the emerging flies escape from the pupal case through the use of an alternatively swelling and shrinking sac called plutonium. अच्छा, जब प्यूपा स्टेज में हाउस फ्लाई आती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो उनका लेयर होता है ना जिसमें वो कवर्ड होती हैं, या तो वो श्रिंक हो जाता है या तो फट जाता है। तो जब वो श्रिंक होता है वो तब भी बाहर निकल जाती हैं, और जब फटता है वो तब भी बाहर निकल जाती हैं। तब वहां से कौन बाहर निकलता है? एडल्ट हाउस फ्लाई, ठीक है। और एडल्ट स्टेज क्या है, आप देख रहे हो, एडल्ट स्टेज में हमारे सामने जो हमारी हाउस फ्लाइज होती हैं उनकी हाइट 6 to 7 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। और एक और चीज, जो हाउस फ्लाई होती है वो फीमेल हाउस फ्लाई ज्यादा लंबी होती है इन कंपैरिजन ऑफ मेल हाउस फ्लाई। ओके, सो हियर माय डियर स्टूडेंट यू कैन सी द लाइफ साइकिल ऑफ अ housefly. So the first of all, a female housefly lay eggs. Here you can see that these eggs are converted into two stages of larva. Okay, means it completed two stage of larva. This is the first stage of larva and this is the second stage of larva. After completing these two stages of larva, it entered into the third larval stage. Okay, and after the housefly enters in the pupa stage. In pupa stage, we can get a finally young adult housefly, and here the result. Okay, so this cycle shows the life cycle of housefly. Okay, now my dear student, we are going to see the life cycle in reptiles. Okay, अभी तक हम लोगों ने birds की life cycle देखी, फिर हमने animals की life cycle देखी, फिर हमने क्या देखा, insects की life cycle देखी. Now we are going to see the life cycle or the reproduction in reptiles. अब reptiles कौन होते हैं? जो रेंग के चलने वाले होते हैं, ठीक है। देखो, जो रेप्टाइल्स होती है इनकी जो स्किन होती है ना स्केल टाइप की होती है, मींस ये सारे के सारे अच्छा, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हो स्नेक का, ठीक है। रेप्टाइल्स कौन है? स्नेक होते हैं, ठीक है। इनकी स्किन कैसी होती है? ऐसा लगता है कि स्केल के थ्रू इन पे इक्वल लाइंस खींची हुई हैं, ठीक है। तो देखो, इनमें फीमेल ही अंडे देती हैं। जो फीमेल के अंडे होते हैं, ठीक है, जो फीमेल अंडे इसमें देती हैं रेप्टाइल्स का, ठीक है, eggs are laid in the shell and leathery. अच्छा, इनके भी अंडे बिल्कुल वही मुर्गियों के अंडे की तरह ही होते हैं, ठीक है। हार्ड शेल होता है बाहर से और इनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। सो फर्स्ट कैटेगरी विच वी आर गोइंग टू सी इन रेप्टाइल्स इज स्नेक। लाइफ साइकिल ऑफ अ स्नेक, ठीक है। अच्छा, स्नेक, आई होप किसी को भी स्नेक तो नहीं पसंद है, सबको डर ही लगता है स्नेक से, ठीक है। तो देखो, स्नेक का लाइफ साइकिल कैसा होता है, ठीक है। आप जानते हो मेल स्नेक है, फीमेल स्नेक है, ठीक है। फिर ये दोनों मिलकर अपने बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। हेयर यू कैन सी फीमेल स्नेक ले एग्स। हेयर यू कैन सी दिस इज अ एडल्ट स्नेक एंड दे ले एग्स, और इन अंडों से ही बेबी स्नेक आते हैं बाहर। अब देख रहे हो, यही लाइफ साइकिल है स्नेक्स का, ठीक है। देखो, अच्छा, जो इनका मेटिंग सीजन होता है स्नेक्स का, ये हर जगह पे डिफरेंट है। जैसे हमारे इंडिया में स्नेक्स, हमारे इंडिया में कंडीशन अलग है, मतलब मॉनसूनल क्लाइमेट है। उसी तरीके से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में अलग है, ऑस्ट्रेलिया में अलग है, यूएस में अलग है, यूरोप में अलग है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो स्नेक्स के मेटिंग सीजन होते हैं वो भी कंट्री टू कंट्री डिफर करते हैं, ठीक है। दे डिफर कंट्री टू कंट्री। ओके, नाउ what process they follow? See, the female lays a fertilized egg. After the mating season, the female snake lay a bunch of eggs. Okay, a bunch of eggs under shallow holes or under the rocks. Okay, now the outer covering of snake egg is not hard, rather it resembles soft leather. See, the egg of birds, the egg of the egg of insects, they all are what? They all are very hard in nature. The outer cover of those eggs are very hard in nature, but it is totally different in case of snakes. Here you can see the white covered, means the outer area of this snake eggs, they are very soft in nature, they are not very hard in nature. Okay, see, the female snake guards and looks after the eggs till they hatch. फीमेल स्नेक क्या करती है? अंडे देने के बाद उनकी देखभाल करती है, ठीक है। और वो कब तक उनको देखती है? जब तक कि उन अंडे में से बच्चे उसके नहीं आ जाते हैं, ठीक है। द जुवेनाइल स्नेक came out of the egg by biting the egg cover with the help of egg tooth. अच्छा, जो जुवेनाइल स्नेक है, मीन्स जो बेबी स्नेक है वो उन अंडों से बाहर निकलते हैं। वो कैसे बाहर निकलते हैं? दे एट द कवर ऑफ द egg,
ठीक है, वो अंडे के कवर को ही खा जाते हैं और फिर वो बाहर निकलते हैं। ठीक है, अच्छा, जुवेनाइल जो स्नेक होता है ये कितने वक्त में बाहर निकलते हैं? इट टेक्स यूजुअली 2 to 4 years। ठीक है, ओके। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू सी द सेकंड कैटेगरी ऑफ रेप्टाइल मींस फ्रॉग। फ्रॉग में किस तरीके का रिप्रोडक्शन होता है? नाउ वी आर गोइंग टू सी हियर। सी, सबसे पहले इनके भी कितने लाइफ साइकिल हैं? इनके 4 हैं, नहीं 5 है, 5 है, हाँ। फ्रॉग में 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, तो जो पहला स्टेज है फ्रॉग के रिप्रोडक्शन का, एग होता है। ठीक है, मेढक क्या करता है? अंडे देता है। ठीक है, फ्रॉग्स ले एग, और वो कहाँ पे अंडे देते हैं? वो पानी में अंडे देते हैं या फिर गीली जगह में ही अंडे देते हैं। ये और कहीं आपको अंडे देते हुए नहीं दिखेंगे। ये फ्रॉग्स क्या करते हैं? हमेशा पानी में या फिर गीली जगहों पे ही अंडे देते हैं। ठीक है, और जब ये गीली जगहों पे अंडे देते हैं ना, इनके अंडे फ्लोट होते रहते हैं। ठीक है, सिमिलरली इनके जो अंडे होते हैं उसमें एक ही सिंगल सेल होता है। ठीक है, सेवरल थाउजेंड समटाइम्स लेड एट वंस। अच्छा, जो ये अंडे होते हैं ना, हियर यू कैन सी देयर इज अ बंच ऑफ एग्स, मींस ये जो एग फ्रॉग होता है ना, एक साथ में हजारों अंडे दे सकते हैं। ठीक है, नाउ आफ्टर एग, दोज एग स्प्लिट्स मींस सेल स्प्लिट्स। ओके, इन अंडों में बंटवारा हो जाता है, ये बढ़ जाते हैं आपस में। ठीक है, अब क्या होता है? ये जो अंडे हैं, आप देख रहे हो ये अंडे क्या होते हैं? एक एक सेल के होते हैं। मतलब जब फ्रॉग अंडे देते हैं ना, वो इस टाइप के होते हैं, देखो ये। ठीक है, ये देखो, आप देख रहे हो ये इस टाइप के होता है। ठीक है, तो क्या होता है, कुछ टाइम के बाद ये अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, मतलब ये इस तरीके में हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरीके में हो जाएंगे, ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो जब अंडे दिए जाते हैं तो कुछ टाइम बाद ये अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अलग होते हैं, फिर ये एम्बारियो में डेवलप हो जाते हैं। ये अलग क्यों हुए हैं ये बताओ पहले, ये अलग क्यों होते हैं? क्योंकि इन्हें एक एम्बारियो में कन्वर्ट होना होता है। अगर ये अलग ही नहीं होंगे तो ये हजार के हजार अंडे तो आपस में चिपके हुए हैं, तो जब ये अलग ही नहीं होंगे तो ये फ्रॉग कैसे बनेंगे? ठीक है, तो देखो, पहले अंडे देती है एक फ्रॉग, लेडी फ्रॉग, उसके बाद वो अंडे क्या होता है? एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसके बाद वो एम्बारियो में डेवलप हो जाते हैं। हियर यू कैन सी द डेवलपमेंट ऑफ एम्बारियो। ठीक है, एम्ब्रियो का मतलब बच्चे उसमें बढ़ना शुरू होते हैं। ठीक है, और ये यूजुअली आपका 21 डेज में बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? टेडपोल। आप देखते हो कि 21st डे के बाद आपको एक जेली शेप मिलता है। हियर यू कैन सी टेडपोल, देखो यहाँ पे, ये देखो टेडपोल है ये। ठीक है, देखो ये टेडपोल आप देख रहे हो, ये 21 दिन के बाद एक जेली के फॉर्म में ये आता है, टेडपोल। ठीक है, ये बेबी फ्रॉग होता है, टेडपोल या बेबी फ्रॉग आप कह सकते हो। ठीक है, और इसको एक प्रॉपर फ्रॉग में ग्रो करने के लिए 3 दिन से 3 हफ्ते का टाइम लगता है। मतलब एक टेडपोल से एक यंग एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होने के लिए इट टेक्स 3 days to 3 weeks। ओके, नाउ एट लास्ट फाइनली वी गेट अ कंप्लीट फ्रॉग। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या होता है, 11 हफ्ते में जब अंडे पूरे के तरीके से डेवलप हो जाते हैं, मतलब अंडे आए, अंडे दिए फीमेल लेडी ने, फीमेल फ्रॉग ने। ठीक है, उसके बाद वो अंडे एक दूसरे से अलग हो गए, फिर वो एम्बारियो में कन्वर्ट हो गए, और वो एम्बारियो क्या हो गए? टेड फ्रॉग में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो 3 हफ्ते के बाद हमें एक प्रॉपर फ्रॉग मिलता है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, इस फ्रॉग में फुल्ली डेवलपमेंट होता है, मतलब इसके लंग्स होते हैं, लेग्स होते हैं, इनमें कोई टेल नहीं होता है। ओके, सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है एक फ्रॉग में रिप्रोडक्शन का। अच्छा, ये यहाँ पे ये देखो, लेट्स सी, देखो ये एक फीमेल फ्रॉग है, इसने अंडे दिए। ठीक है, ये अंडे देखो क्या हो गए? स्प्लिट हो गए। तो जब ये स्प्लिट हुए तो ये सारे के सारे देखो एम्ब्रियो कन्वर्ट हो रहे हैं लास्ट में टेडपोल में। टेडपोल मींस अ बेबी फ्रॉग। ओके, तो ये बेबी फ्रॉग क्या कर रहा है? देखो, एक लास्ट में एक एडल्ट फ्रॉग के तौर पे हमारे सामने आ गया। ठीक है, सो दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। Now we are going to see the reproduction cycle in fishes. Okay, अच्छा, अब देखो, फिशेस में बहुत सी फिशेस क्या करती हैं? अंडे देती हैं, तो बहुत सी फिशेस बच्चे पैदा करती हैं। ठीक है, सो here we are going to see the fishes who lay eggs. Okay, see, इनकी या व्हेन फिशेस हैव बेबीज और ले एग्स इट इज कॉल्ड स्पॉनिंग। अच्छा, स्पॉनर पहला स्टेप होता है फिश के रिप्रोडक्शन का। ठीक है, जब कोई फिश अंडे देती है या बच्चे देती है उसको हम स्पॉनिंग कहते हैं। ओके, हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फिश। Okay, now we are going to discuss this whole life cycle in detail. Okay, now see,
स्पॉनर, स्पॉनर का मतलब क्या है कि जब कोई मेच्योर मेल या फीमेल पैदा होते हैं, ठीक है, जब कोई मेच्योर मेल या फीमेल फिश पैदा होते हैं, एक टाइम पे एक फिश 1000 से 10,000 एग्स देती है, ठीक है। तो जो पहला स्टेज आता है का, ठीक है, वो एग के ही तो फॉर्म में रहेंगे, तो पहला स्टेज आता है आपका एग का, ठीक है। तो एग क्या होता है, ये फिशेस जो बच्चे पैदा अंडे जो देती हैं, ये यूजुअली विंटर के टाइम पे देती हैं, ठीक है। देखो फिशेस में जो अंडे देने का उनका जो टाइम होता है वो विंटर का टाइम होता है, 2 से 3 महीना, ठीक है। तो यंग एडल्ट फिशेस सबसे पहले अंडे देती हैं, ठीक है, और उन अंडों में से एल्विन बाहर निकल कर आती है। अब एल्विन क्या होता है, हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल अ यंग एडल्ट फिश ले एग्स, ओके, इन लेग्स वी कैन सी एल्विन। अब ये एल्विन होता है एक येलो कलर का यॉर्क लाइक शेप है, ये देख रहे हो, एक येलो कलर का यॉर्क लाइक शेप है, ठीक है। ये 1 से 2 महीने तक इसी शेप में रहते हैं, फिर धीरे धीरे ये इन 1 से 2 महीनों में ये एक फिश का फॉर्म लेना शुरू करते हैं, आप देख रहे हो, हाँ, ये एक इसका फॉर्म लेना ये शुरू करते हैं धीरे धीरे, ठीक है। उसके बाद ये फ्राई बन जाते हैं, देखो they become fry. Now what is the meaning of fry? Here you can see, my dear student, fry means when alevins can't take anything else from the yolk cell, they absorb it into their body. Now you can see, my dear student, first of all a female, see, first of all a female, a adult female fish lay eggs, and that egg is converted into alevin, okay, and further this alevin is converted into fry. Fry means those yellow like structure is now converted into baby fish, okay, so that baby fish is called as fry. Now see, smolt, after fry it is converted into smolt. What is the meaning of smolt? Smolt क्या होता है, smolt जुवेनाइल साल्मन, साल्मन फिश का नाम आप लोगों ने सुना है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे आप देख रहे हो, ये देखो, या ये बेबी फिश बन गए, ठीक है। बेबी फिश के पास ये स्मॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब वो बच्चे हैं तो बढ़ेंगे भी, तो जब वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू करते हैं, कन्वर्ट इनटू स्मॉल्ट, ठीक है, ये स्मॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब देखो फिर ये एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं और इसको 1 से 6 साल का टाइम लगता है, ठीक है। हाँ, ये लिव इन द ओशन, ठीक है। जब ये एडल्ट बन जाते हैं तो ये 1 से 6 साल तक, अनटिल एंड अनलेस उनकी फिशिंग ना हो गई हो, हंटिंग ना हो गई, उनकी तो बात अलग है, ठीक है। तो एडल्ट फिश 1 से 6 साल तक इनकी लाइफ स्पैन होती है, ओके। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ फिश, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल अ फीमेल फिश ले thousands of eggs, okay, and those eggs are converted into alevin, and after alevin it converted into baby fish, and that baby fish is called as fry, okay. Now after fry converted into par or smolt, so this is the adult stage, okay, this is the adult stage of fishes, and after adult fish is converted into spawning adult, okay. So this is the whole life cycle of fish. Now we are going to see the life cycle in life bearing animals, means most importantly mammals. So mammals का क्या मतलब है, ठीक है। mammals का मतलब है जो अपने बच्चों को पैदा करते हैं और साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग भी कराते हैं, उन कैटेगरी को हम mammals कहते हैं, ठीक है। ये 2 ही स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। तो चलो mammals में सबसे पहले हम देखने वाले हैं एलिफेंट्स के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हो मैमल ज्यादातर विविपोरस होते हैं, ठीक है। विविपोरस का क्या मतलब है, जो बच्चे पैदा करते हैं डायरेक्टली विदाउट एग्स, ओके। तो देखो जो सारे के सारे मैमल्स हैं वो विविपोरस हैं, ठीक है, मीन्स वो अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो बेबी मैमल्स होते हैं वो अपनी माँ के पेट में ही वो बढ़ते हैं, ठीक है, वो अंडों से बाहर नहीं निकलते, वो अपनी माँ के ही पेट में बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स का, ये है कि दे कैन ड्रिंक मिल्क फ्रॉम देयर मदर्स अंटिल दे आर ओल्ड एनफ टू ईट अदर फूड, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं ह्यूमंस में, ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट एग्जांपल मैमल्स का कौन है, वी ह्यूमन बीइंग्स, ठीक। ह्यूमन मदर क्या करती हैं, ह्यूमन बीइंग्स कैरी मीन्स अ लेडी, मीन्स अ फीमेल लेडी carry their child for 9 months, okay. Similarly elephants can carry
their child in their womb to 20 to 22 month, means a female lady can carry their baby in their womb for 9 months. Okay, similarly elephants can carry their offsprings for 20 to 22 months, and this is the longest period. Okay, this is the longest period of baby carried by any mammals. Okay, now see, a newborn baby will be 300 pounds and will be 1 meter high. Now who look after young ones? अच्छा, बच्चे तो पैदा हो गए, अब तो जरूरी है उनकी देखभाल करना. कौन करता है उनकी देखभाल? तो आप देख सकते हो कि एनिमल्स केयर फॉर ऑफस्प्रिंग इंप्रूव देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल. उनके देखभाल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि छोटे बच्चे बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. ठीक है, तो अगर आप उनका ख्याल ही नहीं रखोगे तो बचेंगे फिर नहीं. ठीक है, यस. अच्छा देखो, सारे के सारे एनिमल्स में और हम ह्यूमन बींग्स में क्या फर्क है, अब देख सकते हो. यू कैन सी हियर बेबी एलिफेंट कितना क्यूट लग रहा है. ठीक है, बेबी एलिफेंट को कुछ टाइम के बाद उसकी मम्मी छोड़ देती है, लेकिन जब तक वो बड़े नहीं हो जाते हैं. ठीक है, तो सारे के सारे एनिमल्स बेसिकली जो मैमल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं वो सब ऐसे ही अपने बच्चों को पालते हैं. ठीक है, चलिए. अनलाइक मैमल्स, द बेबीज ऑफ द इंसेक्ट्स आर नॉट लुक्ड आफ्टर बाय देयर पेरेंट्स. ठीक है, अभी हमने कुछ टाइम पहले रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा. ओके, वी ऑल्सो हैव सीन रिप्रोडक्शन इन फिशेस. ठीक है, बर्ड्स में देखा है. तो मैमल्स की तरह ही जो इंसेक्ट्स होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल नहीं करते. आपने देखा है कॉकरोच क्या करते हैं? छोड़ देते हैं. ठीक है, बटरफ्लाई छोड़ देते हैं. ठीक है, तो सारे के सारे अपने बच्चों को कौन ज्यादा टेक केयर करता है? उनका मैमल्स करते हैं. इसीलिए मैमल्स एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी है. ठीक है, तो क्विक रिकैप कर लेते हैं इस चैप्टर का. हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या है? तो देखो, रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. ठीक है, और इसी के थ्रू न्यू ऑफस्प्रिंग्स आते हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे फिर हम ह्यूमन बींग्स हो. ठीक है, एनिमल्स में क्या होता है? वो पहले तो बच्चे पैदा करते हैं, वो दो कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं. वो कौन कौन से दो कैटेगरीज है? विविपोरस है. विविपोरस का क्या मतलब है? हाँ, जो बच्चे अंडे से नहीं आते हैं. ठीक है, वो डायरेक्टली वो बच्चे पैदा होते हैं, उनको हम विविपोरस कहते हैं. ठीक है, मैमल्स हुए आपके. ठीक है, रिमेंबर, मैमल्स हो गए हमारे. और उसके बाद बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स क्या होते हैं? ये सारे के सारे ओविपोरस होते हैं. ठीक है, मतलब ये एग्स देते हैं. ठीक है, चलो, तो ये सारे क्या? ओविपोरस और एग लाइंग है. और मैमल्स आर विविपोरस, सम एज फिशेस. फिशेस में भी दो कैटेगरी होती है, कुछ विविपोरस में बिलोंग करती हैं तो कुछ ओविपोरस में बिलोंग करती हैं. ठीक है, तो ये दो टर्म्स आप बिल्कुल याद रखेंगे इस चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर today's session. I hope you got a very good understanding of this chapter. Okay, now my dear friends, go thoroughly through this chapter and complete all the exercise based on this chapter. Okay, now I am taking leave and going to meet with you all in my next session with a new chapter. Till then, take very good care of yourself. Bye.